Hello there, everyone. Feeling constantly drained, low on energy, or struggling with stamina? It's no surprise given the constant hustle of long work hours, daily chores, and the pressure to juggle it all. But what if there's a natural remedy that has been used for centuries to revive your vitality and restore your strength? Well, Ayurveda offers a powerful solution in the form of Shilajit. In today's session, we'll dive into the wonders of Shilajit, known for its remarkable ability to boost strength, stamina, and overall vitality. Shilajit is a true powerhouse herb. We'll explore how this time honored Ayurvedic remedy can help you reclaim your energy and feel your best. We are excited to have with us Dr. Subodh, a respected Ayurvedic physician who will share expert insights into the incredible benefits of Shilajit. Firstly, hello, doctor. Thank you. Thank you very So, much. Dr. Subodh is a renowned infertility and pain management specialist with a rich experience in clinical practice, research, and education within the field of Ayurveda. He holds an MD in the Kaya Chikitsa and bachelor's degree in Ayurveda medicine and surgery, with expertise in treating both acute and chronic conditions. Dr. Subodh utilizes classical Ayurvedic formulations combined with Panchakarma, meditation, and yoga. He practices at Arogyam Panchakarma and Infertility Ayurvedic Clinic, where his holistic approach has helped countless patients find relief and healing. So let's delve into the understanding how to increase energy, strength, and stamina with the power of Shilajit. So, firstly, doctor, I would like to ask you, how has Shilajit been traditionally used in Ayurveda? Yeah. So Shilajit, it is a herbo mineral compound which is extracted from higher altitudes from the mountains in the Himalayan regions, Nepal and other countries present over there. So Shilajatu, which means शिला मीन्स स्टोन पत्थर जो पत्थर से पिघल के जो चीज बाहर आती है जो मिनरल उसको शिलाजतु कहते हैं। तो उसका अभी प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड इस कंपोनेंट के अंदर किया जा रहा है लोग जो कि किसी हद तक गलत भी है। शिलाजतु एक रसायन द्रव्य है। रसायन मीन्स इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स रस प्लस आयन। रस मीन्स ऑल द सेवन components of our body. A human body is made up of seven components: rasa, rakta, mans, med, asthi, majja, shukra. So shukra is the seventh dhatu as you see. But when all the six dhatu preceding shukra dhatu is in best quality, ultimately the shukra dhatu will be of best quality. So Shilajatu is a rasayan dravya. It not only acts on the shukra dhatu but also on the other six धातुस along with शुक्र धातु. सो और जैसे कि आपने बोला कि आयुर्वेद में इसका यूज कैसे किया गया है, तो आयुर्वेद में बहुत टाइप के मेडिसिन होते हैं। कुछ जो धातुओं का दुष्टि करते हैं, कुछ जो दोषों का शमन करते हैं और कुछ जो स्वस्थ वृत्त मतलब हमारे हेल्दी लिविंग के लिए ये जो सात धातु मैंने बताए उनको उनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो हम रोटी सब्जी दाल चावल जो भी डाइट्स हम लोग लेते हैं दूध घी, तो ये सब रसायन टाइप में आते हैं जो हमारे स्वस्थ वृत्त को मेंटेन करते हैं। तो वैसा ही एक मेडिसिन है शिलाजतु। जब डाइट से हमें वो सब न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता नहीं है तब हमें ऐसे सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो उसमें से एक मेडिसिन है शिलाजतु। अब शिलाजतु का प्रयोग बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है। जैसे आयुर्वेद में हम कोई भी डिजीज को या आयुर्वेद से हम दो हेडिंग्स के अंदर ट्रीट करते हैं। पहले तो जिसको बीमारी नहीं हुआ है उनको भी हमें उनका हेल्थ मेंटेन रखना है और जिसको बीमारी हो गया है उनकी बीमारियों को ट्रीट करना है। तो शिलाजतु मेडिसिन दोनों जगह काम में आता है क्योंकि ये त्रिदोषात्मक जो आयुर्वेद में ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि जितने भी डिजीज हैं इज ओनली बिकॉज ऑफ द थ्री दोषास वात पित्त एंड कफ। तो ये शिलाजतु जो है ये तीनों दोषों पे काम करने वाला द्रव्य है एज वेल एज इट इज अ रसायन विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि रसायन मतलब जो सात धातुओं पे काम करेगा तो उसे शिलाजतु कहते हैं। दूसरा Right. यूज आयुर्वेद में हम इसका बहुत सारा एक अनुपान करके कॉन्सेप्ट है। मतलब जो हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं उसकी स्पीड को एक्टिवेट करता है, उसके स्पीड को डबल करता है। तो वैसे ही शिलाजतु एक रसायन द्रव्य एज वेल एज कैटेलिस्ट जैसा काम करता है। हम जिस अनुपान के साथ जिस लिक्विड के साथ उसको कंज्यूम करेंगे उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हमें उसका यूज देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक दो इंस्टेंस के लिए मैं बोलता हूँ, अगर आप शिलाजतु का प्रयोग अग्निमंथ के साथ यूज करेंगे तो वो प्रमेह में काम करेगा। शिलाजतु का यूज आप वरुण आदि के साथ यूज करेंगे तो मूत्राघात में काम करेगा। शिलाजतु का यूज आप कवच बीज सुवर्ण जैसे मेडिसिन के साथ यूज करेंगे तो स्पर्म के लिए इनफर्टिलिटी में काम करेगा। तो शिलाजतु को वाइड रेंज ऑफ यूटिलिटी है आयुर्वेदा में, लेकिन इसको एक आयुर्वेदिक फिजिशियन
और अच्छी क्वालिटी, अच्छे ब्रांड का शिलाजितु यूज़ करना, और उसके यूज़ से पहले जैसे मैंने बताया कि वो एक हर्बल मिनरल ड्रग है, तो उसका प्यूरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। ओके, अभी मेरे को दूसरा सवाल आपको पूछना है कि शिलाजीत को एक पावरफुल रेमेडी क्यों कंसिडर किया जाता है इन आयुर्वेदिक मेडिसिन? या तो शिलाजितु कोई भी मेडिसिन देखिए, क्वालिटी उसकी कब हम बोलते हैं कि वो बेस्ट क्वालिटी का है, जो सिर्फ डिजीज को शांत ना करे बल्कि जब हम उसका यूज रेगुलर लाइफ में भी हम कर सकें, तो पावरफुल मेडिसिन। वैसे ही शिलाजितु उस कैटेगरी का एक मेडिसिन है जिसका यूज हम डिजीज होने के बाद उसको ट्रीट करने के लिए, या तो फिर कोई डिजीज हमें ना हो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मसल पावर, विगर, स्ट्रेंथ, ये सब बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिसमें शिलाजितु जो कि एक रसायन द्रव्य है, तो इट वर्क्स वंडर्स। इसीलिए शिलाजितु एक बहुत अच्छा रसायन द्रव्य है, इसलिए उसकी यूटिलिटी आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर, क्या आप हमें अभी बता सकते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ शिलाजीत गोल्ड प्लस? ओके, सो शिलाजितु गोल्ड प्लस इज अ झंडू प्रिपेयर्ड बाय झंडू फार्मास्यूटिकल्स। तो शिलाजितु एक सिंगल ड्रग भी अगर हम यूज करें तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। वैसे ही जब शिलाजितु गोल्ड प्लस, ये एक फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर शिलाजितु गोल्ड, जो बहुत ही पोटेंट आयुर्वेदिक ड्रग है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है गोल्ड, उसके साथ अदर 80 टाइप्स ऑफ मिनरल्स, 80 मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स का यूज करके शिलाजितु गोल्ड प्लस ये कॉम्पोजिशन बनाया गया है। तो शिलाजितु गोल्ड प्लस, इसके अंदर प्रिडोमिनेंटली शिलाजितु गोल्ड और अदर द्रव्य जैसे अश्वगंधा, कवच बीज, मरीच, ये सब मेडिसिन का यूज किया गया है। ओके। अब हमें आप बता सकते हैं कि ये फॉर्मुलेशन प्रोसेस ऑफ शिलाजीत गोल्ड प्लस कैसे होता है? व्हाट इज द फॉर्मुलेशन प्रोसेस फॉर इट? या तो एज ए एक्सप्लेन की शिलाजितु जो है, शिलाजितु गोल्ड प्लस जो मेडिसिन है, इसके अंदर शिलाजितु है, प्लस उसके साथ सुवर्ण भस्म है, प्लस उसके साथ जो मेजरली जो प्लांट्स यूज किए गए हैं उसमें से है अश्वगंधा, गोक्षुर, मुसली, सुवर्ण भस्म, जातिफल और कवच बीज। तो ये सब अगर ड्रग्स की आप स्टडी करें तो अश्वगंधा ये एक बहुत अच्छा रसायन द्रव्य है जो हमारा इनफर्टिलिटी एज वेल एज मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। गोक्षुर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करने वाला द्रव्य है। मुसली आप देखें तो वो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। सुवर्ण भस्म जो हमारे सप्त धातुओं पे, पूरे बॉडी पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट हमें देखा गया है। वैसे ही शिलाजीत, इसके बारे में हमने बहुत चर्चा कर ली है। कवच बीज, कपिकच्चू, अगेन विच वर्क्स ऑन मेल इनफर्टिलिटी। तो दिस ओके। कॉम्बिनेशन, इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा बल्य, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देने वाला है। अच्छा, अभी कैन यू टेल अस कि व्हाट मेक्स शिलाजीत गोल्ड प्लस डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर शिलाजीत सप्लीमेंट्स? या तो शिलाजीत तो गोल्ड के अंदर हमने बात किया कि सिर्फ शिलाजीत ही नहीं, उसके साथ गोल्ड और अदर मेडिकेशंस, अश्वगंधा, गोक्षुर, कवच बीज, ये सब भी मेडिकेशंस है। तो फॉर एग्जांपल जब हमारा बॉडी किसी एक स्पेसिफिक मिनरल में डेफिशिएंट होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल B12 की बात किया जाए, या कैल्शियम, विटामिन D3, तो ये सब हम दे सकते हैं। लेकिन शिलाजीत जो एक मिनरल कंपोनेंट है, मिनरल प्लान, ये है सब्सटेंस है जिसके अंदर बहुत सारे 80 प्लस मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये उसको बाकी अदर सप्लीमेंट से अलग बनाता है। तो इसीलिए उन सबसे अच्छा है। ऑन टॉप ऑफ दैट सुवर्ण भस्म है जो कि सप्त धातु के लिए बहुत अच्छा रसायन द्रव्य है, तो इसीलिए शिलाजित गोल्ड प्लस ये बाकी दूसरे सिंपल प्लेन शिलाजित से बहुत अच्छा काम करता है। ओके। अभी आप हमें प्लीज़ बताएंगे ऑडियंस को कि हु कैन टेक शिलाजीत एंड इज इट सूटेबल फॉर एवरीवन? या अभी शिलाजितु गोल्ड की बात किया है तो ये उसके बहुत सारे टाइप्स है। फॉर एग्जांपल गोमूत्र गंधी, कर्पूर गंधी, फिर अगर और एक क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो उसमें सुवर्ण शिलाजीत, रजत शिलाजीत, ताम्र शिलाजीत, लोह शिलाजीत। तो लोह शिलाजीत सबसे अच्छा माना गया है। इसका जब बॉडी के अंदर एक्शन देखा जाए तो कुछ हॉट इन नेचर है, कुछ कोल्ड इन नेचर है। तो वो हमें पेशेंट जब आएगा कोई कंप्लेंट लेके, डिजीज लेके, तो वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। जो शिलाजीत है ये आपने देखा कि ये पत्थर जैसे स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, रिजिड चीज को फोड़ के जब बाहर आता है तो इतना अच्छा ये मेद के ऊपर काम करता है। तो शिलाजितु का जब भी यूज हमें पेशेंट में करना हो तो जो फैट पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा यूज इसका देखने को मिलता है। तो ओके। बाकी भी अभी जो फॉर्मुलेशंस है तो हमें वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है सो दैट एवरीवन इसका बेनिफिट ले सके। तो इसीलिए शिलाजित गोल्ड प्लस का बेनिफिट सब लोग ले सकते हैं। राइट। अभी आई थिंक ये सवाल ऑडियंस के दिमाग में होगा ही, बट यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर। डज शिलाजीत रियली वर्क? या एब्सोल्युटली, शिलाजीत के बारे में हमने पहले इतना सारा देखा,
तो शिलाजीत अगर सही मतलब एक कंसल्टेंट, आपके जो कंसल्टेंट होंगे उनसे अपना बॉडी टाइप, प्रकृति, जिसका यूज आप हमारे प्रकृति टूल से भी कर सकते हैं, मैंने प्रकृति का एनालिसिस, तो अपनी प्रकृति दिखा के आपको कौन सा टाइप का शिलाजीत का मेडिसिन लगेगा वो आप देख के डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। ओके, अनदर क्वेश्चन इज दैट कि व्हेन शुड शिलाजीत बी टेकन फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, मॉर्निंग, नाइट, कैसे होना चाहिए? सी आयुर्वेदा में हर एक मेडिसिन का अलग अलग काल बताया है, उसको दशविध औषध सेवन काल ऐसा कहा गया है। तो जैसे जो रसायन मेडिसिन है उसको प्रिडोमिनेंटली सुबह सुबह जब हमारा पेट खाली होता है, जब हमने कुछ खाया नहीं होता है, तब रसायन मेडिसिन का यूज करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए अगर इसका बेस्ट बेनिफिट हमें चाहिए तो हमें ये सुबह सुबह लेना चाहिए, दूध के साथ ले सकते हैं। और बाकी जो पेशेंट्स है जिसको एनर्जी के लिए या कम डोज में दिया है वो देना है उनको बीडी डोज में, मतलब खाने के बाद दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। अच्छा, ओके। और ये शिलाजीत इवन विमेन विमेन कंज्यूम कर सकते हैं ये? यस यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। खाली उसके अंदर पित्त प्रकृति नहीं है, उनके अंदर जो एंड्रोजेंस है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स वो ज्यादा नहीं हो तो शिलाजीत का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि ये सप्त धातुओं पे काम करता है। तो एवरी ह्यूमन, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों 7 धातुओं से बने हुए हैं, उनकी क्वालिटी एनहांस करने के लिए हम शिलाजीत का यूज कर सकते हैं दोनों। Got it. Okay. Or are there any side effects of taking Shilajit Gold Plus? आयुर्वेद इज अ डबल एजेड सोर्ड। सो अगर आप जो शिलाजीत है अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का, अच्छे प्रोसेस्ड की और शिलाजीत का यूज करते हैं तो आपको उसके साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं अगर आप जो शिलाजतु है उसको मारन बोलते हैं, जिससे इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, हम उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस बताए गए हैं। अगर आप उनका यूज करते हैं तो आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। अगर शिलाजीत लेने के बाद आपको बॉडी में बर्निंग सेंसेशन, अनकॉन्शियसनेस, डिल्यूजन या कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या फिर लो डाइजेस्टिव फायर या कॉन्स्टिपेशन ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले तो इसका मतलब उसमें जो शिलाजीत यूज किया गया है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो इसके लिए आप अपने अच्छे वैद्य से, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके किसी अच्छे ब्रांड का शिलाजीत गोल्ड प्लस का यूज आप कर सकते हैं। Right, okay. That was truly an enlightening session. A big thank you to Dr. Subodh for sharing his expertise and shedding light on the incredible benefits of Shilajit. These valuable insights couldn't have come at a better time, especially when so many are looking for natural solutions to boost stamina and overall vitality. We are also deeply grateful to everyone who joined us today, and we hope this session left you feeling informed, inspired, and a little more empowered on your wellness journey. Don't forget to follow us on social media and check out our website for more tips on Ayurvedic living, updates on upcoming sessions, and expert advice to help you live your healthiest life. Until next time, stay well and stay connected. We look forward to seeing you soon again. आई Thank वुड you so लाइक टू much, ऐड Dr. समथिंग, एक्सक्यूज मी, आई वुड Oh, लाइक, हाँ, तो oh, okay. सबसे पहले कि अभी आयुर्वेद जो है शिलाजितु का प्रचार प्रसार मैंने आपको जैसे बताया कि ये सेक्सुअल वेलनेस इस कॉन्सेप्ट को लेके ज्यादा हो रहा है, जो कि गलत है Right. एक टाइप से, क्योंकि इसका यूज शिलाजितु का यूज हम बाकी बहुत सारे फैक्टर्स को देख के उसका यूज हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैमिना एनहांस करने के लिए, आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी, हमारा डाइट ठीक नहीं, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो शिलाजितु एज अ रसायन जो हमारे सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, हर एक का एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइंड है हमारे बॉडी में। फॉर एग्जांपल रस धातु जो है वो उससे सब स्किन बनता है, उससे आगे के जो धातु है वो सब बनते हैं। फिर सेकंड है Right. रक्त धातु, जिससे हमें हमारा ब्लड अच्छा बनता है, हमारा टेक्सचर, कॉम्प्लेक्शन जो है वो रक्त धातु की वजह से होता है। थर्ड है मांस धातु, जिससे हमारा जो बॉडी का बिल्ड है, मसल स्ट्रेंथ है, वो मांस धातु से होता है। फिर मेद, Okay. अगर मेद एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे बॉडी में फैट्स का नीड है। फिर अस्थि, जो हमारे बोन्स है वो स्ट्रेंथ हमारे बॉडी के हैं। फिर मज्जा, जितने भी बोन्स के अंदर जो टिश्यू है उसको मज्जा कहते हैं। और फिर शुक्र। तो ये जो शिलाजितु है ये पूरे धातुओं को, क्वालिटी को एनहांस करता है और अल्टीमेटली हमारा स्टेमिना इंक्रीज करता है। फिर Right. नेक्स्ट है वाइटलिटी। तो शिलाजितु का यूज कि वाइटलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है पावर। फिर आजकल हम देखते हैं कि जो ट्रैवलिंग हम कुछ भी करें, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, हमें पावर की जरूरत पड़ती है, तो शिलाजितु का यूज हमें वहां भी देखने को मिलता है। ठीक है। Okay. Okay. Also, Doctor Chalo, I want to ask you a couple of questions. Can poor diet and sleep really affect our stamina and energy levels? यस, डेफिनेटली। आहार संभवम वस्तु रोगश्च आहार संभवम, आयुर्वेद का ऐसा श्लोक है जिसका मतलब है कि हमारा जो शरीर है वो आहार से बना हुआ है। तो आहार Right. संभवम वस्तु, जो शरीर, वस्तु मतलब शरीर,
तो हमारा जो शरीर है वो आहार से बना गया है, रोगश्च आहार संभव, और जो भी रोग है वो भी आहार से। आप नोटिस करेंगे तो हमने अगर पानी पूरी खाया तो मुझे एसिडिटी हो गई, अगर हमने कुछ राइट। मैदा वगैरह खाया तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। पेशेंट आते कंप्लीट लेके कंप्लेंट्स लेके कि कल मैंने ये खाया और आज मुझे ये तकलीफ हो गई। मतलब ये यहाँ पे डिफाइन होता है कि अगर हमारा डाइट पुअर हो, उसकी क्वालिटी खराब हो, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर उसका टाइम, मन में जो भाव हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब इनका रोल है एनर्जी लेवल्स पे। और अगर फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो अल्टीमेटली हमारा स्टेमिना और एनर्जी लेवल्स कमी। राइट। अभी पर्सनली सिंस आई एम समवन हु कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ कैफीन लाइक कॉफी एंड ऑल, आपके हिसाब से व्हाट डेली हैबिट्स कैन वी फॉलो टू नेचुरली बूस्ट एनर्जी विदाउट कैफीन? सी यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ योर डे विथ मीन्स जल्दी उठना, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट। सनराइज के पहले ऐसा उठने के लिए कहा गया है, तो मिनिमम 6 AM तक उठ जाइए। उसके बाद मोशन वगैरह होना चाहिए। मोशन होने बराबर। के बाद 40 टू 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। उसके बाद हम्म। आप वेट करिए कि आपको भूख कब लगता है। वेन एवर यू फील हंग्री यू शुड हैव योर लंच। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ब्रेकफास्ट, ओके। इट शुड बी योर लंच वेन एवर यू फील हंग्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डे। फिर उसके बाद आपको आपका काम करना है। फिर शाम को जैसे ही सनसेट हो उसके पहले हमारा डिनर हो जाना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है। पहले ज़माने के लोग, या आज भी अगर आप गाँव में जाते हैं तो वहाँ के लोग सनसेट से पहले, या जैन जो कम्युनिटी है उनके अंदर भी सनसेट से पहले ही खाना खाने का आज भी रिवाज है। तो इसलिए राइट। ये सब अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं तो अल्टीमेटली आपके जो 3 दोष, 7 धातु, 3 मल, ये अगर सम अवस्था में रहे, बैलेंस स्टेट में रहे, तो आपके बराबर। एनर्जी लेवल्स ऑटोमेटिकली बूस्टेड रहेंगे। Right. Also, can we take Shilajit Gold Plus along with allopathic medicines? या यू कैन टेक इट। Oh, यस। okay. And आपके हिसाब से who should avoid taking Shilajit based supplements? सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट शिलाजीत का जो नेचर है वो कभी कभी हॉट हाँ। है, कभी कभी कोल्ड है। तो कौन सी हम्म। फार्मेसी या वैद्य जो है वो कौन सा टाइप का शिलाजीत यूज करने जा रहे हैं वो देख के, और हमारे पेशेंट में जो सिम्टम्स है, शिलाजीत जो है ये मेद को, जो मेदस्वी पेशेंट है, जो फैट है, ओबीज है, उनके अंदर यूज करते हैं तो वो हॉट इन नेचर होता है। Right. तो जिसको बराबर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, जिसको चक्कर आ रहे हैं, जिसका जिसको आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, तो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए Okay. शिलाजीत के। And okay, क्या stress और long screen time drain our physical strength too? यस, जो नेत्र है वो आलोचक पित्त का स्थान है। तो आप जितना स्क्रीन टाइम बढ़ाएंगे अपना पित्त दुष्टि कर रहे हैं, उतना आप देखिए, आप जो दिन भर काम करते हैं उनको मेंटल फटीग ज्यादा होता है। बराबर। तो इसीलिए स्क्रीन टाइम ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा ड्रेन, एनर्जी ड्रेन करने Right. के पीछे। Right. Okay. Another question मुझे आपको पूछना है, what makes a gold bhasma special in Shilajit Gold Plus? Gold is again a very important, very potent, very highly effective medicine in Ayurveda. तो सुवर्ण जो है टॉप ऑफ द धातु में है, सबसे ऊपर सुवर्ण भस्म। अगर आप गोल्ड की रेट की बात करें तो वो भी आज देखें तो सबसे ज़्यादा है। तो वैसा ही इफेक्ट जब उसको हम कंज्यूम करते हैं तो गोल्ड का इफेक्ट, वो मेद्य है, रसायन है, सप्त धातु पे काम करने वाला है, तीनों दोषों को बैलेंस करने वाला है, स्वर्ण है, एज को बढ़ाने वाला है, बल को बढ़ाने वाला है, सब धातुओं को बढ़ाने वाला है, उसके एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स है। तो जब ये सुवर्ण भस्म, शिला जतु, जो पहले से ही एक रसायन द्रव्य है, तो वो जब दोनों साथ में आते हैं तो उनका स्पीड, उनका एक्शन डबल हो जाता है। Right. Okay. Also, or one more question I have. Can working professionals and students both use Silajit-based products? या आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो हैं वो संतर्पण जन्य, मतलब उनका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। पहले के ज़माने में अगर देखा जाए तो उनका फिजिकल एक्टिविटी, चलना ज़्यादा होता था, खेत में काम Right. करना, या फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होता था। लेकिन आज हर चीज़ सेडेंटरी हो गई है, ना ही फिजिकल एक्टिविटी है। मोबाइल, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट सब चीज़ें हम मंगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ओबीज, जो फैट, अनसैचुरेटेड फैट्स, इसका लेवल बढ़ रहा है। तो शिला जतु Okay. ऐसे कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करता है। तो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। Right. Also, is it safe to take Shilajit Gold Plus daily for a long period? Yeah, it is safe, but it should be under a guidance of Vaidya. Okay. Okay. I think that was truly an enlightening session. A big thank you to Dr. Subodh for sharing his expertise and shedding light on the incredible benefits of Shilajit. These valuable insights couldn't have come at a better time, especially when so many are looking for natural solutions to boost stamina and overall vitality.
We're also deeply grateful to everyone who joined us today, and we hope the session left you feeling informed, inspired, and a little more empowered on your wellness journey. Don't forget to follow us on social media and check out our website for more tips on Ayurvedic living, updates on upcoming sessions, and expert advice to help you live a healthiest life. Until next time, stay well and stay connected. We look forward to seeing you again. Thank you so much, Dr. Subodh, for joining us. Thank you very much for having me.